students, welcome to our channel Be Always Learner, and please like and subscribe our channel for getting latest video notification. Till now we are able to complete the exercise 1.2. Now we are proceeding towards exercise 1.3. So that exercise relates to the estimation of numbers. Now if I am going to define the estimation, तो एस्टिमेशन होता है हम किसी नंबर का आइडिया लगाते हैं. उसके लिए हमने 3 एग्जांपल लिए हैं. आई जस्ट रीड द स्टेटमेंट्स. इंडिया ड्रू विद पाकिस्तान इन ए हॉकी मैच वॉच्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली 51,000 spectators in the stadium and 40 million television viewers worldwide. Approximately, second statement is approximately 2,000 people were killed and more than 50,000 injured in a cyclonic storm in coastal area of India and Bangladesh. Third statement is over 13 million passengers are carried over 63,000 kilometer route of railway track every day. Now, from these three statements, you can understand there are three words written over here. The one is approximately. Approximately. This is the word written over here. And second word is I am going to say that more than. More than word is here, and another is over. So we have to understand these three words. अगर हम कहते हैं कि approximately, इसका मतलब कि 51,000 से फिगर कम है. That is not exactly 51,000. This is lies between 50,000 to 51,000. Now, another, if I am going to say approximately 2,000 people, approximately 2,000 means that is again lies between the 1900 to 2000, and more than 50,000, it means the figure lies between 50,000 and 51,000. So that is lies between these two, but this is not means ke this is 70,000. So it is somewhat near to the 50,000. Another word is over 13 million. So it means it is going to lie between 13 million to 14 million. So it means the figure is not going to say that it is 70 million. So it means जब भी हम define करते हैं approximately, more than and over, it means that is not a exactly figure. This is the approximation of the figure. अंदाजा लगाना जिसको हम बोलते हैं. Can we say that there were exactly as many people as the numbers quoted in these news? क्या exactly वही नंबर है? नहीं, ये वो नंबर नहीं है. दिस इज अप्रॉक्सीमेशन. जैसे यहाँ भी इन्होंने समझाया है कि हम इसको कह सकते हैं कि अगर हम 51,000 बोल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली वर्ड यूज करके, सो इट मीन्स दिस कुड बी 50,800, 51,300, बट इट इज नॉट 70,000. सिमिलरली अगर हम 40 मिलियंस की बात करते हैं, सो इट मीन्स implies that more than 39 millions but quite less than 41 millions. But it doesn't mean that this is certainly not this is 50,000 or more than that. So this is the estimation we are going to study. Now the question arises, where do we approximate? हमें कहाँ approximation की ज़रूरत पड़ती है? हम एक सेरेमनी, एक सेलिब्रेशन के बारे में सोचते हैं जो कि हमारे घर में होना है. किसी के घर में भी एक सेलिब्रेशन होता है तो हम उसमें सबसे पहले अंदाजा लगाते हैं कि वहाँ पर कितने गेस्ट आने वाले हैं. रफली एक आइडिया लगाया जाता है, लेकिन हम उसको एक एग्जैक्ट फिगर नहीं एस्टिमेट कर सकते वहाँ पर. So यहाँ पे can you give any idea about the exact number? No, it is not possible to give the exact number. In the same example, we can also say that the finance minister of the country is going to announce the budget every year. But अगर हम एक हेड की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन हेड की बात करते हैं कि एक एजुकेशन हेड में एक कंट्री को कितने पैसे चाहिए,
Can the amount be absolutely correct? No, amount is not going to absolutely correct. It can only be reasonable good estimation of the expenditure. कि वो एक गुड एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन हो सकता है कि भाई हाँ, अगर हम मान लीजिए, अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम कि 30 रुपीज़ खर्च होने से एक घर में, तो हम कह सकते हैं कि हम 29 रुपीज़ खर्च करेंगे, बस नियर टू द एग्जैक्ट अमाउंट। ठीक है, सो नियर टू द एग्जैक्ट अमाउंट वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है अप्रोक्सीमेट करने की और एस्टिमेशन करने की। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं, जब हम एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो एस्टिमेशन आता है वो हम करते हैं टेंस, नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ एस्टिमेशन। सो जब हम ये वाला एस्टिमेशन करते हैं तो वी आर गोइंग टू सी दैट द टेंस प्लेस ऑफ द नंबर should be estimated. Say if I am going to say that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम क्या ये कहेंगे कि 2 10 के बहुत करीब है? नहीं, 2 इज नियर टू 1 और वी कैन से 0 ऑल्सो। और इसी तरह से अगर हम 8 कहें, 8 इज नियर टू 10, राइट, नॉट टू 0। बट अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस 0 एंड दिस 10। इट मीन्स we can estimate the 5 towards 5 can be estimated towards 0 or 10, but practically we can say that it is going to approach towards 10. So for exact or for practical estimation we are going to estimate the 5 towards 10. So this is the crux of estimation. So I think you can understand it. सो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, सो द क्वेश्चन इज फाइंड विच फ्लैग इज क्लोजर टू 260। नाउ दिस 261 is closer to 260, is it? Now this flag 263 is closer to again 260. Now but this 267 is not closer to 360, it is closer to 270, right? And this 269 is closer to 270. It means we can answer the question that 261 is closer to 260 and 263 flag is closer to 260, 267 flag is closer to 270 and 269 is closer to 270. Now another example has also been given here, that can we say that 17 is closer to 10 or 20? We can say that this flag at 70 is closer to this 20, not with the 10. So we can estimate that अगर हमें 17 गिवन हो और हमें उसका 10th estimation करना हो तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं 20. So this is the meaning of this. So this is the correct estimation of the number. अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, तो हम इसको एक सॉल्व करेंगे. So 28 is near to 28 is near to what? It is near to 30, right? And 32 is near to, it is not near to 40, it is near to 30. 52 is near to 50 and 41 is near to 40, right? And 39 is near to 40, right? And this 48 is near to 50. Clear? Next set of examples. This 64 is near to 60 and this 59 is near to 60 and this 99 is near to, not 90, it is near to 100, and this 215 is near to. Now it जैसे मैंने कहा आपको कि अगर 5 आ जाता है तो हम practically we are going to consider it on 220 because it is near to 220 leading towards 220. Now it is 1453, it is near to 14, right, 50 and 2936, it is near to what?
If it is 36, it is near to 40. It means it is 2940. So now you can understand the concept also. So next one is estimating to the nearest hundreds by rounding off. अब हम 100 की तरफ rounding off करने की कोशिश करेंगे. So first question is the 410 is nearer to 400 or 500? So it is nearer to 400, not 500, because अगर हम 400 में 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास 410 आएगा, लेकिन हम 410 में 90 ऐड करेंगे तो हमारे पास 50 आता है. तो it means it is having higher distance with the 500. Now we are having certain rules for this. The first rule is for the 100th is 410 is closer to 400. We get the idea. It means we can write 410 is 400, right? So now 889 lies between 800 to 900, but it is closer to 900, so we can write and we can round off towards 900. So हमने अभी certain rules के बारे में बोला था, तो हम इसके लिए बताएंगे कि 1 to 49 अगर कोई फिगर आती है तो हम उसको राउंड ऑफ करेंगे 0 पे, क्योंकि इट इज क्लोजर टू 0 नॉट 100. अगर 51 to 99 कोई हमारे पास डिजिट आती है तो दैट इज क्लोजर टू 100 नॉट 0, तो हम उसको राउंड ऑफ करेंगे 100 पे. अगर हमारे पास 50 आ जाता है जो कि इक्वी डिस्टेंस है, कहां पर इक्वी डिस्टेंस है? 0 और 100 के बीच में, तो प्रैक्टिकली वी राउंड इट ऑफ टुवर्ड्स 100. सो सीधा सा हो गया कि अगर 1 to 49 1 से 49 के बीच में कोई हमारे पास डिजिट आती है तो हम उसको 0 पे करेंगे. 51 से 51 से 99 तक आती है तो हम उसको 100 पे राउंड ऑफ करेंगे. और इन केस अगर 50 आ जाता है तो हम उसको किस पे लाई करेंगे? 100 पे राउंड ऑफ करेंगे. इज इट क्लियर? नाउ वी हैव टू चेक दैट विच वन इज करेक्ट और नॉट. नाउ 841 can we write it 800? Because it is nearer to 800, we can write it. Next is 9537. It is nearer to 500, so we can write 9500. 49,730, so it is near to 49,700, so it is also correct. So 2,546, it is nearer to 2,500. So 286 is not 200, it is nearer to 300, so the correct answer we should also write here 300. 5,750 is nearer to 500, 5,800, so it is correct. Next 168, it is nearer to 200. Yes, it is correct, so it is correct. 149 is nearer to 100, it is also correct. And 9,870, it is not nearer to 9,800, it is nearer to 9,900, so this is correct one. So in that fashion we can choose the correct and the wrong answers. By proceeding further, we are having next topic is estimation to nearest 1000 by rounding off. अब इसमें डायरेक्टली वी कैन रीड द रूल्स कि अगर कोई फिगर हमारे पास 1 to 499 के बीच में आती है, सो हम उसको मैप कर सकते हैं 0 पे, बिकॉज वो 0 के क्लोजर है. ठीक है, वो 1000 के क्लोजर नहीं है, सो हम उसको राउंड ऑफ करेंगे 0 पे. अगर 501 to 999 कोई फिगर आती है इन दोनों के बीच में, तो 1000 के क्लोजर है, 0 के क्लोजर नहीं है, तो हम उसको दे आर राउंडेड ऑफ एज 1000. सो एंड अगर 500 कोई फिगर आती है तो वी आर राउंडेड ऑफ टुवर्ड्स 1000, जैसे मैंने आपको पहले बताया. तो हम डायरेक्टली वी कैन चेक द आंसर्स. अभी एक फिगर है 2573, कैन वी मैप इट टू 3000? Yes, we can map it on 3000. एक फिगर आती है हमारे पास 53,552. Can we map it on the 53,000? Because यहाँ पे 500 आ गया और ऊपर 52 भी है हमारे पास.
No, we can't make it like this. We have to make it 554 and then 3 zeros. So 5 4 3 zeros यानी कि 54,000. Next is 6,404. So that is the figure. So we can make it on 6,000. It is correct. So 65,437. Yes, it is also correct. It can be mapped over here. 7,805. It can be mapped to not to 7,000. It can be mapped to 8,000, because this 7,805 is quite near to 8,000, so it can be mapped to that. 3,499. So it is one less than 500, so it can't be mapped on 4,000. It can be mapped on 3,000, right? So next is, under the heading of try these, we are having the question, round off the given number to the nearest tens, hundreds and thousand. So हमारे पास ये फिगर है 75,847. इसको हमने टेंस पे राउंड करना है. सो वी आर हैविंग 7 5 8. Now 47 can be rounded off towards 50, so it is 50. Now hundreds पे राउंड ऑफ करना है सेम फिगर को. सो वी आर गोइंग टू राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट 847 को अगर हम कंसिडर करें तो 7 5. Now this is nearer to 800, so we are going to write 800 here. 1000 पे हम राउंड ऑफ करेंगे, so we are going to consider this much of point. So this is 7 and this is, now it is nearer to 6,000, so it is 6,000. And now we are going to consider the entire one. So it is going to be, for 10,000 it is going to be 80,000, because it is nearer to 80,000, and this is complete. Now next is, अब अगर हमें हम मार्केट में हो, ठीक है, और हमें एस्टिमेशन करना हो किसी समेशन का, किसी डिफरेंस का, तो नेक्स्ट टॉपिक उसके लिए है टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस. तो अब हमें नियरेस्ट टू हंड्रेड्स करना है या नियरेस्ट टू थाउजेंड करना है, एक तो हम उसको देखेंगे, और फिर हम उसको एस्टिमेशन कैसे करें. तो फर्स्ट इसमें समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमें एस्टिमेट करना है 5,290 and 17,986. So you will find that this figure is higher than this one. ठीक है, सो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे. तो हम पहले इसको राउंड ऑफ करते हैं. हमने राउंड ऑफ किया इसको 18,000 पे, और हमने इसका थाउजेंड्स राउंड ऑफ किया 5,000 पे. दोनों का हमने थाउजेंड्स राउंड ऑफ ले लिया, एंड वी डायरेक्टली एस्टिमेट दिस. इससे हमें क्या पता लगा जब हमने दोनों को ऐड किया कि हमारा जो एडिशन है दैट इज बिकम क्वाइट इजी. डज दिस मेथड वर्क इन एक्चुअल आंसर? बिकॉज जब हम थाउजेंड्स पे उसका मैप करते हैं तो वो फिगर आपकी काफ़ी एक्चुअल आंसर से काफ़ी दूर चली जाती है. दैट इज़ हैविंग क्वाइट डिस्टेंस फ्रॉम द रियल आंसर. सो इसमें एस्टिमेशन ड्यूरेशन में हमें ये जरूर देखना है कि हमारे जो आंसर हैं वो actually मैच करें हमारे एक्चुअल आंसर से. So another example we have to take, estimate the value 5,673 minus 436. इसको एस्टिमेट करना है हमें. फिर यहाँ पे हम 1000 का एस्टिमेशन लगा रहे हैं. सो अगर हम 5,673 को 1000 पे एस्टिमेट करते हैं तो दैट विल बी 6,000, और अगर हम 436 को 1000 पे राउंड ऑफ करते हैं, सो वी आर हैविंग जीरो फिगर है, सो दिस इज 6,000. सो दिस इज नॉट ए रीजनेबल वन कि हमारे पास एक डिजिट हमारे पास अवेलेबल है और हम उसको जीरो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एस्टिमेशन. सो दिस इज ऑल्सो द नॉट द गुड आइडिया. नाउ सो नेक्स्ट टू एस्टिमेट द प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट को एस्टिमेट करने के लिए हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं. सो हम प्रोडक्ट को एस्टिमेट करते हैं कि हाउ डू वी एस्टिमेट ए प्रोडक्ट. So to estimate the product, we are having an example that 19 को हमने 78 से मल्टीप्लाई करना है. So हम यहाँ से एस्टिमेट करें तो 19 को हम मैप कर सकते हैं 20 पे, राइट, और 78 को मैप कर सकते हैं 80 पे, एंड वी आर मल्टीप्लाइंग इट, वी आर गेटिंग सम आंसर 1600 इजीली. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इट इज गोइंग टू टेक लॉन्गर टाइम, बट इसको हम क्विक मैथड से करें सो वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई इट एंड गेट द आंसर.
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 63 और 182 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 63 को हमने मैप किया हंड्रेड्स पे, राउंड ऑफ किया तो हमारे पास आया 100, और 182 को हमने मैप किया तो हमारे पास आया 200। दोनों को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी आर गेटिंग डायरेक्टली द आंसर। बट क्योंकि हमने इन दोनों को हंड्रेड्स पे मैप किया है, सो यू कैन सी कि जो आपका आंसर है वो बहुत लार्ज हो गया है एक्चुअल प्रोडक्ट से। So it is not fine. So to get the realistic result, what we want to do that 63 को हम टेंस पे राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 60 डिजिट आती है, और 182 को अगर हम टेंस पे राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 180 फिगर आती है। इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वी आर गेटिंग 10,800 which is approximately double of this figure. So it means एक्चुअल फिगर के हमारे पास आना चाहिए, लेकिन ये इतना क्विक नहीं हुआ बिकॉज यहाँ हमें किसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, 180 को हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और थॉट दें, अगर हम 63 को टेंस पे राउंड ऑफ करें तो 60 आ गया, 182 को हंड्रेड्स राउंड ऑफ करें तो 200 आ गया, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, इट इज़ क्वाइट इजी, और हमारे पास 12,000 आंसर आ गया, विच इज़ क्वाइट इजी एंड विच इज़ क्वाइट नियरर टू द आंसर ऑल्सो। ठीक है, अगर हम 20,000 को कंपेयर करते हैं और हम 12,000 को कंपेयर करते हैं तो 12,000 इज क्वाइट नियरर टू 10,000, सो दैट मेक सम सेंस। सो इसका मतलब अगर कोई दो हमारे पास नंबर है, नंबर ए और नंबर बी, और हम दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम दोनों को अलग अलग पॉइंट पे भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। इसको 10th पॉइंट पे राउंड ऑफ कर सकते हैं और इसको हम हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ कर सकते हैं, एंड एनी वट एवर बी द फिगर जो हमें मिली हो उसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज में आपकी एनसीईआरटी की बुक में ट्राई दीज के नाम से प्रोडक्ट गिवन है, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 87 को हम टेंस पे राउंड ऑफ करेंगे, सो वी लैंडेड विद 90, एंड वी आर हैविंग दिस फिगर ऑल्सो 313। इसको हम अगर हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ करें, वी आर हैविंग 300। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, so we are having 3 zeros and 27 here, so we can easily find the result। in another case अगर हमारे पास ये फिगर है तो 9 को हम टेंस पे अप्रॉक्सीमेट करें और 795 को हम 800 पे राउंड ऑफ कर सकते हैं, which is quite near, this will become 8,000। next is 898 को हम राउंड ऑफ करेंगे 900 पे, एंड दिस 785 को हम मल्टीप्लाई करें, सो वी आर हैविंग सॉरी राउंड ऑफ करें, सो वी आर हैविंग 800 एयर। सो जो आंसर आएगा दैट विल बी 4 टाइम्स 0 एंड 72। नेक्स्ट इज इसको हम राउंड ऑफ करते हैं, सो वी आर हैविंग 1000 मल्टीप्लाइड बाय 387, इसको हम मल्टीप्लाई करें, सो वी आर हैविंग 400 एयर। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वी आर हैविंग 5 zeros, राइट, 5 zeros and 4 एयर। सो दिस इज आंसर। सो दिस इज द क्विक कैलकुलेशन वी कैन डू थ्रू एस्टिमेशन। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज योर कंसेप्ट इज द लास्ट वन इज वी आर हैविंग हियर जनरल रूल। जैसे हमने ये कहा कि हम दो पर्टिकुलर पॉइंट्स को, दो पर्टिकुलर फिगर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी को हमने मल्टीप्लाई किया। हमने पहले एग्जांपल में ये देखा कि अगर हम इन दो पॉइंट्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इन दोनों को फिगर्स को, ए को और बी को सेम पॉइंट पे राउंड ऑफ करें। हम इसको टेंस पे भी राउंड ऑफ कर सकते हैं और इसको हंड्रेड्स पे भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ये पर्टिकुलर फिगर क्या है। तो इसको यहाँ पे नाम दिया गया जर्नल रूल। तो दिस इज अ जर्नल रूल। व्हाट इज अ जर्नल रूल? राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस, देन मल्टीप्लाइड द राउंड ऑफ फैक्टर। यानी कि जो हमें ए और बी मल्टीप्लाई करने हैं उसको ग्रेटेस्ट प्लेस पे हम राउंड ऑफ करें, ठीक है, तो हमें नियरेस्ट आंसर मिलेगा। से सपोज एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर
81 मल्टीप्लाइड बाय 479, तो हम 81 को राउंड ऑफ करें तो नियरेस्ट इज और ग्रेटेस्ट प्लेस इज टेंस, यहाँ पे राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो वी कैन राइट 80 हेयर। और 479 का हम राउंड ऑफ करें तो हंड्रेड्स मैक्सिमम प्लेस तक हो सकता है, तो वी कैन राइट 500। इन दोनों का एस्टिमेटेड प्रोडक्ट लें, दैट इज 40,000। सो हम उसको किस पे करें, मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट प्लेस पे हम उसको राउंड ऑफ करें ईच मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स को। सो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये आपको समझ में आ गया होगा। सो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, एंड हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आते रहेंगे आपके लिए।